Youth and Sports. He's also the Minister for Information and Broadcasting. Avenues which are making the headlines and ministries that are always doing something and on their toes because there is so much information that's doing the round. Anurag Thakur ji, namaste. Namaste. Always a pleasure speaking with you, Anurag ji. Thank you. So we will try and mix the languages between English and Hindi. My first question to you, sir, as Information and Broadcasting Minister, please educate me. Is Sanatan Dharma equal to dengue and malaria? It's such a sad statement. I mean, he should apologize to the nation. What is Ghamandiya Gathbandhan doing? How do you see Ghamandiya Gathbandhan? Ghamand, Ahankar, ही इनकी पहचान. If you look at West Bengal, they pelted stones, fired bullets and bombs during the Ramnami procession. Again, look at Bihar and Uttar Pradesh. Ghamandiya Alliance leaders spoke against Mahasita and Ramayana, and now against the Sanatan Dharma. From OBCs, anti-OBCs to the anti-Hindus, this is Ghamandiya Gathbandhan. ये घमंडिया गठबंधन की पहचान है. हिंदू विरोधी होना, सनातन विरोधी होना, ओबीसी विरोधी होना, यही इनकी पहचान है. ये कोई मौका नहीं छोड़ते जब रामनवमी के जुलूस पे पथराव करें, गोलीबारी चलाएं, हिंदुओं को अपमानित करें, षड्यंत्र रचें और यहाँ तक कि माँ सीता और रामायण पर भी अपशब्द कहें. जब कुछ और नहीं बचा था तो घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने डेंगू मलेरिया के साथ सनातन धर्म की तुलना कर दी, कुचलने की बात कर दी, ख़त्म करने की बात कर दी. अरे जो आपके पूर्वज नहीं कर पाए, जो सोच को लेकर आए थे कि ख़त्म करेंगे, वो नहीं कर पाए तो आप क्या चीज़ हो. देश आपको करारा जवाब देगा. और एक नेता घमंडिया गठबंधन का ऐसा नहीं जिसने एक बार भी इन सब इंसिडेंट्स पे कभी उसकी आलोचना की हो. ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं. ये एक वर्ग का वोट पाने के लिए हिंदुओं को और अपमानित करना चाहते हैं. लेकिन दूसरी ओर सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली है, जिन्होंने सभी लोगों को 140 करोड़ भारतीयों को परिवारजन कहा है. अगर 4 करोड़ पक्के मकान बना कर दिए तो हिंदू सिख ईसाई सबको मिले. 4 करोड़ बहनें लखपति बनी. अगर 12 करोड़ से ज़्यादा रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में दिए गए तो हिंदू सिख ईसाई सबको मिला. अगर 13 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा तो सबको मिला. हर गांव में बिजली पहुंची, सबको उसका लाभ मिला. अगर 18.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए और 80 करोड़ गरीबों को, ज़रूरतमंदों को 2.5 साल तक मुफ्त में अनाज मिला, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगी, तो इस सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र वाले नरेंद्र मोदी जी ने किया. वो किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहते हैं, वो सबको साथ में लेकर चलते हैं. और यहाँ घमंडिया गठबंधन है, कभी ओबीसी की आलोचना, कभी अपशब्द कहना, तो कभी अब भगवान राम से लेकर अब सनातनी धर्म तक केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस स्तर तक गिरना, ये घमंडिया गठबंधन की सोच और इनके नेताओं की सोच दिखाता है. But there is a question in your own answer, Anurag ji. See, because if you look at Tamil Nadu, from the times of E.V. Ramaswamy Naicker, this Hindu bashing, idol bashing in the name of rationalism has happened since the 50s. It started then. They ensured national parties were wiped out, Kamaraj government was wiped out. It's the same narrative now. From Hindu bashing or idol bashing, it's now become Sanatan Dharma. They've used this word Sanatan Dharma. But overall the attack is on Brahmins. Where are Brahmins in power in Tamil Nadu or anywhere else? Why using this Brahmin bashing, they say elitism. Then they say casteism is the root cause of all problems in our country and casteism is the bane of Sanatan Pratha. These are parts which Udayanidhi Stalinji on his Twitter reaffirmed his comment. Does all the members of India Alliance agree with him? So far nobody is objected. So that means they agree with him. Is that the same ideology? Is that the same vision of the Ghamandiya Alliance? See, the issue is they have to come clean on this. Just for your vote bank politics, you can't stoop so low
to divide the society for your political gain. If you have nothing to showcase as far as your government achievement is concerned, you are unable to pick leader of your Ghamandiya alliance, then you stoop so low to divide the society. So these kind of seats just for your political gains. See, because Kamal Nath ji talks about Hindu Rashtra, Rahul Gandhi talks about Mohabbat ki Dukaan, Priyanka Gandhi Vadra, there she's out there going to temples, visiting temples, praying. Rahul Gandhi was at a temple in Wayanad also. So on the one hand, the Congress is playing soft Hindutva, coveting Hindus. Their own allies in Tamil Nadu are standing there and saying Sanatan Dharma is bad, it's the root cause of all evil in our country. ये नफरत की दुकान है जहाँ चीनी समान है। ये देखिए, कभी चीन की भाषा बोलते हैं, कभी उनके पक्ष में बोलते हैं, और देश के अंदर आए तो कहने के लिए तो मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन हर किसी की तरफ से नफरत नफरत और नफरत ही इनके निकलती है। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ये चुनाव आते हैं तो कोई जनेऊ पहन के निकल पड़ेगा, कोई मंदिर पहुंच जाएगा। ये राहुल गांधी जी ने अनेक बार करके देख लिया। वहाँ पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भगवान राम का, they are working the Chitrakoot, that हाँ, entire circuit. और यहाँ पर मध्य प्रदेश में हनुमान जी का। लेकिन कर्नाटक का चुनाव आता है तो आप बैन लगाने की बात करते हैं, आप ध्रुवीकरण का फ़ायदा उठाते हैं, और आपको लगता है कि हाँ ये पोलराइजेशन होगी और हम राजनीतिक लाभ उठाएंगे। इनकी सोच केवल सत्ता में आने तक है, और सत्ता में आने के बाद जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में एक बार नहीं कई बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। उस समय बढ़ाए जब केंद्र में मोदी सरकार ने दाम कम किए जनता को राहत देने के लिए। राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है। हिमाचल की सरकार को बने 6 महीने हुए 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। क्यों? ये फेल हो गए गवर्नेंस के नाम पे। राजस्थान की कल की घटना देखिए, एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया जाता है। हर दिन राजस्थान में 17 से 18 केसेस महिलाओं के प्रति अपराध, अत्याचार और बलात्कार के ऐसे आते हैं। क्या श्रीमान राहुल गांधी जी बांसवाड़ा तो गए रैली करने, भीलवाड़ा में जो युवती के साथ रेप हुआ, दलित युवती के साथ मार दिया गया, आप गए क्या? मुख्यमंत्री के घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे राजस्थान में रेप हुआ महिला का, 10 साल के बच्चे के सामने मां मर गई। ऐसी अनेकों घटनाएं। मुख्यमंत्री के अपने जिला में 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया। कहां है ये सरकारें? मणिपुर पहुंचते हैं कई हजार किलोमीटर दूर। हमने पहले दिन कहा कोई भी ऐसी घटना हुई वो देश और समाज को शर्मसार करती है, लेकिन राज्य की सरकारों को उचित कदम उठाने चाहिए। यहाँ गहलोत सरकार सोई हुई है, जहाँ कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था चरमरा गई और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वहाँ पे राहुल गांधी जी नजर नहीं आते हैं। वहाँ ये घमंडिया गठबंधन के लोग हाथ पांव फूल जाते हैं। तो आनंद जी, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, राजनीति के चलते कितना गिरने वाले हैं। ये तो देश के बाहर जाके दूसरे देश की धरती पर भारत की छवि को गिराने का काम करते हैं। ये तो चीन में जाकर राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा उनसे लेते हैं। ये तो डोकलाम पे चीन अतिक्रमण करने का प्रयास करता है, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री तो बॉर्डर पे सेना का मनोबल बढ़ाने जाते हैं। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी चीन के अधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक करते हैं, एग्रीमेंट साइन होते हैं, पैसों का लेन देन होता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन में आया पैसा किसको गया, किस काम पे लगा, आज तक जवाब नहीं कांग्रेस दे पाई।